નમસ્કાર, ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે સંધ્યા. નેપાળ સદીની સૌથી ભયાનક દુર્ઘટનાનો શિકાર થયું છે. તબાહીના તાંડવનો સિલસિલો હજુ પણ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું. વધુ એક કૃત્રિમ તળાવ ઓવરફ્લો થતા એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. નેપાળમાં ફ્લેશ ફ્લડ બાદ તબાહીનો જે નજારો સામે આવ્યો છે તે રૂવાડા ઊભા કરી દે તેવો છે. તિબેટથી ત્રિશુલી સુધી 30 મિનિટમાં જ મોતનું એવું પૂર આવ્યું કે બધું ખેદાન મેદાન કરતું ગયું. જેમણે સ્વજનો ગુમાવ્યા છે તેમની તો દુનિયા જ લૂંટાઈ ગઈ છે. આંખોમાં આંસુ અને ગુમ સ્વજનની યાદ જ બચી છે. નેપાળમાં જળ પ્રલયનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ. તબાહી પાછળ છોડી ગઈ દર્દ. છલકતી આંખે સ્વજનોની શોધ. दीदी यहाँ आउनु न. मेरे भाई को बचा लो. मम्मी तीनटा बहिनी एउटा छोरी. સ્વજનોની ભાળ મેળવવા ભટકતા પરિવારજન. આ દ્રશ્યો જોઈને એવું લાગ્યું કે જાણે કોઈ બોમ્બ ફાટ્યો. પાણીના પ્રવાહમાં જે આવ્યું તે નેસ્તનાબૂદ થઈ ગયું. તબાહી એવી જે પહેલા ન જોઈ ન સાંભળી હોય. હિમાલયના શિખરો પર નેપાળ તિબેટ બોર્ડર પર જે કંઈ થયું તેને શબ્દોમાં વર્ણવવું અશક્ય છે. બસ માત્ર એટલું સમજી લો કે પાણી, ભેખડો અને કાટમાળ માણસને ચગદી નાખતા આગળ વધી ગયું. હજુ ગઈકાલ સુધી જ્યાં જિંદગી કિલ્લોલ કરતી હતી ત્યાં આજે સન્નાટો અને માતમ છે. ગઈકાલ સુધી જ્યાં વિકાસ અને પ્રગતિના પુરાવા નજરે પડતા ત્યાં આજે પ્રકૃતિના પ્રકોપના નિશાન છે. ચારે બાજુ બસ જોવા મળી રહી છે બરબાદી. એટલી મોટી સંખ્યામાં બરબાદી કે તેનો હિસાબ लगावવો असंभव છે. कल तक यहाँ पे एक सड़क थी, ये त्रिशूली का एरिया है. कल तक ये रास्ता आपको नॉर्दर्न नेपाल की तरफ लेकर जाता था, बट कल दोपहर के बाद से ये सिर्फ एक कच्ची मिट्टी का दलदल बन चुका है. और अब आप देखिए किस तरीके से ये जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं. नेपाल के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो स्काउट्स है, डिजास्टर रेस्क्यू की टीम्स है, यहाँ की लोकल म्यूनसिपैलिटी की टीम्स है, वो सब लगी हुई है यहाँ पे वापस सड़क बनाने के लिए, यातायात का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए. नदी का पानी किस हद तक ऊपर आया था मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए, ये एक गाड़ी है, एक ट्रक है. आप देखिए पूरी तरीके से वो मिट्टी में दब चुका है यहाँ पर. तो पानी का स्तर, नदी वहाँ है, उस तरफ है नदी, और वो नदी का रास्ता था. बट वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक है, इसकी पूरी बिल्डिंग को डैमेज करते हुए ये सामने एक बिल्डिंग और है. देखिए पूरी तरीके से उसका छत टूट चुका है. जितनी बिल्डिंग्स उस कोने में हैं सब पूरी तरीके से दब चुके हैं. और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पूरा कीचड़ है, तो ये अभी स्टेबल नहीं है. ये अभी अभी नदी से उखाड़ के नदी जो अपने साथ उठाकर मलबा लाई है, ये मलबा अभी भी गीला है, तो इसके ऊपर चलकर भी आगे जाना अनस्टेबल है. पर आप देखिए नदी से यहाँ तक पानी जो है उसने डैमेज किया हुआ है. નેપાળની તબાહી કેટલી મોટી, કેટલી ભયાનક, કેટલી ડરાવનારી છે તેનો અંદાજો તમને આ આંકડાઓ પરથી આવી જશે. સતત વધતો મોતનો આંકડો, 30 દેશોના કેટલાય લોકો ગુમ, 19 જેટલા પુલ તબાહ થઈ ગયા, 100 કિલોમીટરનો રસ્તો ધોવાયો, 13 હાઇડ્રો પ્રોજેક્ટને નુકસાન, 200 થી વધુ ટ્રક અને ક્રેન તબાહ. કુદરત તો તાંડવ કરી આગળ વધી ગઈ, પાછળ છોડી ગઈ લાચારી, આશા અને હતાશા. જેની સામે હવે માણસ ઝઝૂમી રહ્યો છે.
લોકો સ્વજનોની ભાળ મેળવવા માટે ભટકી રહ્યા છે. છેલ્લે ફોન પર વાત થઈ હતી, છેલ્લા શબ્દો સાંભળ્યા હતા અને હવે તે શબ્દો ફરી સાંભળવા કાન તરસી રહ્યા છે. सिटी का ये महाराजगंज मेडिकल कैंपस है. यहाँ पर बहुत सारे परिजन आए हुए हैं. कोई खबर नहीं है कि 2 दिन बाद भी उनके जो परिजन हैं उनकी क्या हालात है. एक ऐसा परिवार मेरे साथ है. आपके जीजा जी थे शायद जो रुसवा में जिनकी जाने की खबर मिली है. आप बता रहे थे फोन पे बात हो रही थी उनसे. फोन का बात कर रहा था, बात टूट गया ना उसका. फोन में उसका बेटी से बात कर रहा है 9 बजे तक. अनि फोन करते थे, फोन एक लाइन कट गया. आवाज़ आया ना, आवाज़ आया अनि लाइन कट गया. संपर्क भी ना 9 बजे. परसों सुबह 9 बजे उनकी अपनी बेटी से बात हो रही थी उसका और बेटी बेटी को ही फोन पे सुनाई दिया कि जोर से आवाज फोन आई. कर रहा है, बात कर गया, लाइन कट गया. डैम आवाज़ आया ना 9 बजे तक, अनि पता ही नहीं. और तब से लेकर अभी तक कोई खबर है? कोई खबर नहीं है. वो इंडियन टूरिस्ट को लेकर गए थे. ड्राइवर थे, टूरिस्ट गाइड थे? ड्राइवर थे. ड्राइवर. આ કુદરતી રીતે થયું કે પછી માણસના વધતા હસ્તક્ષેપનું પરિણામ છે તે તપાસનો વિષય છે. પણ તસવીરો પરથી તે વાત સ્પષ્ટ છે કે તિબેટ અને નેપાળના પર્વતો પર જે કંઈ થયું તે સ્થાનિક લોકો માટે નર્ક કરતા ઓછું ન હતું. છતાં પણ લોકોનો જુસ્સો હજુ અડીખમ છે. કુદરતે ભલે તમાચો માર્યો પરંતુ માણસ હિંમત નથી હાર્યો. नवाकोट में नदी ने अपना रुख बदल दिया है बट लोगों के जज्बे ने अपना रुख नहीं बदला है. आप देखिए ये नेपाल स्काउट्स के लोग हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अपना हार्नेस बांध रहे हैं, अपने हुक्स एक्सेट्रा टाइट कर रहे हैं क्योंकि वो इस तैयारी में है कि अगर नदी के उस पार अभी भी कोई फंसा हुआ है जिसको लाने की जरूरत है. रोड्स खत्म हो गए हैं, ब्रिजेस वॉश आउट हो गए हैं, तो आखिर कैसे फंसे हुए लोगों को लाया जाए उसकी तैयारी चल रही है. ये जो रस्सी ये बांध रहे हैं ये 6 किलोमीटर तक की लंबाई जोड़ के इसकी लंबाई बनाई जा सकती है. ये जी that much 6 kilometers rope. 6 किलोमीटर तक की लंबाई रोड है. ये आपके हाथ में क्या है? किसी को ये लाना, सुमर है, ये इसके यूज करके से हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं. क्लाइंबिंग कर सकते हैं ऊपर. हाँ ऊपर. और ये हमारा हार्नेस, हाफ बॉडी हार्नेस, ये भी प्रयोग करके हम ये रेस्क्यू में यूज कर सकते. अगर हमारे पास ये कुछ भी नहीं है तो हम ये रोप के सहायता से भी हार्नेस बनाकर ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते किसी को हैं. लाना होगा तो अपनी पीठ पर या हार्नेस पर लाएंगे आप? या हाँ? हार्नेस पर वैसे जोड़िए. लाएंगे. हाँ. तो आप देखिए इनके पास वॉकी टॉकी है, हार्नेस है, रोप है और अलग अलग ये देखिए इनके पास ये अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर्स भी हैं ताकि लोग जो फंसे हुए हैं, और आप देखिए ये विसल भी लगा रखा है इन्होंने. तो अगर कोई लोग फंसे हुए हैं तो इनके विसल से इनके साउंड सिस्टम से उनको पता लग जाएगा कि मदद उनके पास आ रही है. और जिस कलर के इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं ये भी अंधेरे में भी देखे जा सकते हैं. और लगातार ये हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ नवाकोट में उड़ रहे हैं. જે લોકોની જિંદગીને ચકદીને આ તબાહી આગળ વધી છે તેમનું કહેવું છે કે વાદળફાળ તબાહી તો પહેલા પણ આવી હતી, પણ આ વખતે જે જોયું તે પહેલા ક્યારેય નથી જોયું. વર્ષોથી ભેગી કરેલી મૂડી પળવારમાં પાયમાલ થઈ ગઈ. હવે હાથ ખાલી છે, આંખોમાં આંસુ છે ને દર્દભર્યા સ્વરે પોતાના પર આવી પડેલી આફતની આપ વીતી છે. હજુ લોકોને આ આફત એક સપના જેવી લાગી રહી છે. હજુ પણ આંખોને વિશ્વાસ નથી થતો. ये सपना जैसा लग रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है अभी तक. जब मैं हमारे क्लास सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है और मैं घर से 6 बजे निकल चुकी थी और हम पढ़ाई. आप स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ. कौन सी क्लास में? 9th क्लास में क्लास में पढ़ती हैं. या. तो आप स्कूल के लिए निकली थी? हाँ, फिर पढ़ रही थी और एक बार सबके फ़ोन में कॉल्स आए, टीचर्स के फ़ोन में, और कह रहे थे बाढ़ आ रही है, सब भागे जाओ, यहाँ भी आ चुका है. और सब टीचर्स ने बच्चे को रेस्क्यू किया. हाँ, और हम वहाँ से निकल गए. हम थोड़ी देर लेट होते तो हमें भी कुछ हो जाता. और हमारे प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल मैम सब ने मिलकर हमें रेस्क्यू कर लिया. हम 15 मिनट्स आगे ही हम रेस्क्यू हो चुके थे और वहाँ नेटवर्क नहीं था, हम कॉल कर नहीं पाए पेरेंट्स को. हाँ. और एक बार एक सपना जैसा रह गया, जो शांत रहता था ये खोला है ना, ये रिवर्स जो शांत रहता था एक भर में सब પ્રકૃતિના પ્રકોપનો શિકાર થયેલા લોકો હવે વેર વિખેર થયેલી જિંદગીઓને પાટી ચઢાવવામાં જોતરાયા છે.
ત્રિશુલી અને નવાકોટમાં ચારે બાજુ બસ કાટમાળ જ કાટમાળ છે. त्रिशूली, नवाकोट, रुआसा, नॉर्दर्न नेपाल की ये जो जगह है, 26 अगस्त को सुबह 8:10 के बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह पलट गई है. आप देखिए मेरी दाईं ओर और मेरे पीछे यहाँ पहले सड़क थी, आज यहाँ सिर्फ मलबा है. जेसीबी की मशीनें पिछले 24 घंटे से लगी हुई है कि वापस से सड़क को जोड़ा जा सके, ताकि आगे जो लोग फंसे हुए हैं उन तक किसी तरह राहत पहुंचाया जा सके. न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी पिछले 24 घंटे से लगातार इस कोशिश में है कि ग्राउंड से आपको सटीक खबर दिखाई जाए. यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था. पहले तो काठमांडू तक का सफर और फिर काठमांडू से यहाँ तक का सफर. सड़क जो है वो पहाड़ी रास्ते से होकर आती है. लगातार आर्मी के कॉन्वॉय, आर्मी की ट्रक्स मूव कर रही है. तो जो पहाड़ी सड़क है पतली सी, वहाँ भी हेयरपिन बेंड से आर्मी के कॉन्वॉय को ऑब्स्ट्रक्ट ना करते हुए यहाँ तक पहुँचना. बीच में कई जगह कीचड़ है. लोगों के बीच में ये अफवाह भी फैल गई थी कि दोबारा पानी का जल स्तर बढ़ सकता है. और यहाँ भी बहुत भीड़ है. मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खड़े हैं. ये यहाँ पहले एक बाजार था, बहुत सारे लोगों के घर थे, उनकी दुनिया तबाह हो चुकी है. माझीटा दीदी नंबर जारी किए गए हैं. दीदी यहाँ आउनु न. मेरे भाई को बचा लो. मम्मी, तीनटा बहिनी, एउटा छोरी. આ અવાજ સાંભળશો તો કાળજું ચીરાઈ જશે. આ દર્દ સાંભળશો તો આંખો છલકાઈ જશે. આ સિસકારામાં તે આઘાત છે જે હવે શ્વાસની સાથે જ જશે. આવું કોઈની સાથે ન થાય. ન આવું જોઈ શકાય તેમ છે, ન સાંભળવાની શક્તિ છે. વિચારો જેના પર વીતી હશે તેની શું હાલત થઈ હશે. कौन कौन? मम्मी, तीनटा बहिनी, एउटा छोरी, कोही पनि छैन. लापता छ. 3 दिन भइसक्यो. तो गांव नीचे था आपका? हमारा रसुवा जिल्ला पर्छ दाई. त्यहाँ रसुवा जिल्ला पर्छ हाम्रो बेतराउती. कोही पनि भेटे छैन. कोही कहाँ गयो. ન હોશ છે, ન જીવવાની કોઈ ઈચ્છા. બસ જીવતા રાખી રહી છે એક આશા. સ્વજન પાછા ફરશે, કંઈ નહીં થાય તેમને. खोलामा रुम सबै बगायो, केही छैन. ज्यान मात्रै बाँचेको. अनि छोरा छ 2टा अनि बुढा. सब सुरक्षित है? सबैजना छ. सब है? सबै गयो रुम. आप नेपाल के ही हो? मेरो घर तराईमा छ. तराई में. यहाँ आपके सभी लोग बच गए, सुरक्षित है? सब लोग बच गए. આ પરિવારના 5 લોકો ગુમ છે અને તેમનું ઘર તે પુલ પાસે જ હતું જ્યાંથી મોતનું પૂર પસાર થયું હતું. ત્યાંથી તેમની કોઈ ભાળ મળી નથી. બસ હવે બચી છે तो मात्र आशा. अच्छा से सब लोग निकल गए, सुरक्षित है. हम लोग इतना पाक में फंसे हुए थे. हम लोग को पूरे जी ते डूंगे खोला है ना, त्रिशूली खोला, धोबी खोला, ते ही हम लोग का घर दुकान उकान कुछ भी नहीं हम लोग का. आदमी बच गया? आदमी तो बहुत सुरक्षित. हम लोग इतना थे पाक में, हमारे पुलिस तान ने रसरी तान कर निकाल कर हम लोग का सुरक्षित. જ્યાં જાઓ ત્યાં એક જેવી તસવીરો છે. નેપાળના નવાકોટમાં રિલીઝ કેમ્પમાં મૃત અને જીવિત લોકોની યાદી લગાવવામાં આવી છે, જેમાં પીડિતોના પરિવારજન નામ શોધતા જોવા મળ્યા. પણ નસીબ બધા સાથે નહોતું. આ બાળકીના પિતા ગુમ છે. હવે લિસ્ટમાં પણ નામ નથી. કેટલાય લોકોની આશા તો મરી પરવારી છે અને જેટલી છે તેટલી જીવતા રહેવા પૂરતી છે. हमको तो कुछ भी पता नहीं है. यहाँ जो लिस्ट लगाई गई है, हाँ. इसमें आपने अपने रिलेटिव्स को ढूंढा? सब. नहीं मिला? नहीं मिला. कहाँ से हो आप? माझीटार दीदी. कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं? दीदी यहाँ आउनु न. भान्जी यहाँ आउनु तिमी. कौन है मिसिंग आपके? मेरो भीना ब्रदर. ये भाभी हैं आपकी? भाभी नहीं, मेरे भांजी. એક દીકરીની આશા તૂટતી જોવા મળી. એક પત્નીની આંખો સામે ત્યારે અંધારું છવાઈ ગયું જ્યારે તેના પતિનો મૃતદેહ જમીનમાં દટાયેલો જોવા મળ્યો. જમીનમાં અડધા દટાયેલા પોતાના પતિના મૃતદેહને જોઈને તે હૈયાફાટ રુદન કરતી જોવા મળી.
પત્ની ઘાસ કાપવા માટે ઊંચાઈવાળા સ્થળે ગઈ હતી એટલે એ બચી ગઈ, પણ નીચે પતિની કિસ્મત સારી ન હતી. લોકો પોતાના સ્વજનોની શોધમાં ભટકી રહ્યા છે. રેસ્ક્યુ ઓપરેશન્સ ચાલી રહ્યા છે. હોસ્પિટલની અંદર પણ મૃતદેહોની ઓળખ થઈ રહી છે. ઈજાગ્રસ્તોની સારવાર ચાલી રહી છે. वेरी वेरी सॉम्बर, बहुत ही सॉम्बर माहौल है इस वक्त यहाँ इस अस्पताल में. लोग जो हैं वो इन्फॉर्मेशन के लिए तरस रहे हैं. 2 दिन के बाद भी कोई जानकारी नहीं है कि रसुआ में क्या स्थिति है, क्योंकि वहाँ रेस्क्यू टीम्स पहुँच ही नहीं पा रही हैं. तो ऐसे में अस्पताल आकर ही लोग मेडिकल जो स्टाफ है उनसे पता करने की कोशिश कर रहे हैं. નેપાળમાં સર્જાયેલી પૂરની ગંભીર પરિસ્થિતિ વચ્ચે ફસાયેલા ગુજરાતીઓની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का ये महाराजगंज मेडिकल कैंपस है. यहाँ पर बहुत सारे परिजन आए हुए हैं. कोई खबर नहीं है कि 2 दिन बाद भी उनके जो परिजन हैं उनकी क्या हालात है. एक ऐसा परिवार मेरे साथ है. आपके जीजा जी थे शायद जो रसुआ में जिनकी जाने की खबर मिली है. आप बता रहे थे फोन पे बात हो रही थी उनसे. हाँ, फोन का बात कर रहा था, बात टूट गया ना उसका. फोन में बेटी से बात कर रहा है 9 बजे तक. फोन करते थे, फोन एक लाइन ही कट गया. आवाज़ आया लाइन कट गया. संपर्क भी नहीं संपर्क 9 बजे. परसों सुबह 9 बजे उनकी अपनी बेटी से बात हो रही थी और बेटी को ही फोन पे सुनाई दिया कि जोर से आवाज आई. फोन कर रहा है, बात कर लाइन कट गया. डैम आवाज़ आया ना 9 बजे तक, पता ही नहीं. और तब से लेकर अभी तक कोई खबर है? कोई खबर नहीं है. वो इंडियन टूरिस्ट को लेकर गए थे. ड्राइवर थे, टूरिस्ट गाइड ड्राइवर અગાઉ 12 ગુજરાતી નાગરિકોની માહિતી સામે આવી હતી અને ત્યારબાદ આ આંકડો 18 થયો. હવે 28 ઓગસ્ટના સવારે 7 વાગ્યાને 45 વાગ્યા સુધીમાં કુલ 24 ગુજરાતીઓનો સંપર્ક નથી થઈ શક્યો. રાજ્યના સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર દ્વારા તૈયાર કરાયેલી માહિતીમાં આ વિગતો સામે આવી છે. નેપાળમાં આવેલા વિનાશક પૂરમાં લાપતા થયેલા ગુજરાતી પ્રવાસીઓના પરિવારજનોની ચિંતા સતત વધી રહી છે. લાસ્ટ સંપર્ક થયો તો એ વખતે વાત થઈ હતી કે હવે આગળ ચાઇનાની બોર્ડર ઉપર જ્યારે હોટલમાં કે એમાં રોકાઈશું ત્યારે વાઈફાઈથી કોન્ટેક્ટ કરીને વિડીયો કોલ કે પછી કોઈક વોટ્સએપ કોલિંગ ઉપર વાતચીત થશે. એ પછી એ કોઈ પ્રકારનો સંપર્ક થયો નથી. અમે ઘણા સંપર્ક કરવાનો ટ્રાય કર્યો. એની સાથે એના ખાસ 2 મિત્રો હતા, પ્લસ ટૂરની અંદર 26 થી 30 જણ એ જ ટૂરની સાથે જઈ રહ્યા હતા. જે ટૂર્સનું નામ હતું કૈલાસ. ત્યાં એ લોકોનો કોઈ જ પ્રકારનો કોન્ટેક્ટ થઈ નથી શક્યો. જે ટૂરમાં ગયા હતા એ ટૂરનું નામ હતું કૈલાસ શરણી કરીને હતું. એ જ એમની સાથે કાલે વાત થઈ હતી ત્યારે એમની સાથે લોકલ જે નેપાળના માણસ 5 હતા એમનો પણ કોન્ટેક્ટ કરવાનો ટૂર ઓપરેટરે કર્યું હતું, પણ એ લોકોનો પણ જે 26 થી 30 લોકો હતા સાથે એ લોકોનો પણ કોઈ કોન્ટેક્ટ થયું નથી હજી સુધી.